ਲਾਈਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜਣੇ ਔਰ ਖੁਦ ਤੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਤਬਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਘੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾੜਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀਆਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾੜੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੌਲਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਬੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਾੜਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਖਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਖਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ
ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਖਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਉਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਐਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਜੋ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਖਾੜੇ ਦੀ ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾੜੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਕ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਮਹਿਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਖਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਭੇਡ ਉੱਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਭੇਡ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 600 700 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ
देखता की देखा, मेरा ख्याल चुनवियां ही कोई बकरियां सी। और मैं उन्होंने देखा, वो चरवाहे ने जो असी गड्डी कड्ढन लगे उन्हें सीढ़ी मारी और भेडा सारिया लैंसर हो गई, सानू लंघन नूं राह दे दिता। वो सीढ़ी दे उत्ते अपने चरवाहे की आवाज के उत्ते लगियां हुई सुन रहे हैं, बोलता हाँ, वो गल्लां समझते हैं, वो गल्लां सुन रहे हैं और समझ रहे हैं भी साडा सेवक सानू की समझा रहा, खाड़े बारे समझते हैं। क्योंकि दो तरह के खाड़े हैं, कदी असी भी उस खाड़े दे विच सीगे, सानू उस खाड़े दे विच जिहड़ा खाड़े च असी पहला गए, उस खाड़े दे विच सानू जिहड़े सानू इस खाड़े दे विच आके मिले। हुण वो खाड़ा सीगा मती दी पुस्तक, ओदी 7 वाला, प्रभु है प्रभु असी तेरे बाग नहीं कीते, करामाता नहीं कीतियां, अचंबे काम नहीं की, लेकिन जिहड़ा उत्थे दा जिहड़ा टीचर है वो कहता मैं तेनू जानदा ही नहीं आ। उस खाड़े दा वे चमत्कार करने वाले, कड्ढण वाले उत्थे, लेकिन असी भी वो खाड़े सीगे किसे दे। और इस खाड़े विच बोलने का शब्द देखो कितना बोले, यीशु जी, ताकि लोग उस आवाज नूं सुनन, आवाज मिठी लगे। ये खाड़े का एक काम। लेकिन जिहदे खाड़े की पौलुस गल कर रहा है, इत्थे मुकुट रखिया होया है, इस तुसी आपां गल करदे सी पहला, उस खाड़े कहंदा जिहड़ा मालिक है खाड़े दा, वो कहंदा मैं तेनू जानदा ही नहीं आ, हे कुकर्म वालिओ मेरे तो तुसी दूर हो जाओ। लेकिन पौलुस जिहड़ा आ वो इस खाड़े की गल करदा, कायदे मुजब घुलदा आ, वो मुकरदार है। और उस कायदे किसी ने नहीं लगता है। देखो इन्हां ने लड़के देखो गल्लां निकलदियां आ, वो निकलनी है क्योंकि वो तेरे मतलब दियां है। क्योंकि तू जड़ा है मल मार के बैठा होया धरती दे, तू धरती दे उत्ते मल मार के बैठा है, तां करके तेनू वो गल्लां वधिया लगदियां आ। पर याद रखी, वो तू भी याद रखियो, सब नूं कहा मैं भी एक दिन तू इस धरती तो जाना है। ये याद रखना चाहिए भी एक दिन धरती नूं छड्डना ही पैना है। सदा सुख ने कहा जो तू सिपाहीगिरी करे ते दुख, जो तू दुख झलेगा ते जड़ा आया होया वो तेरा आ। ये बारे मैं गल रखी सी भी दो तरह के खाड़े, उधर मैं एक खाड़े की गल की और दूजे खाड़े की गल की। तुसी लोग समझते आ इदां दा कोई इत्थे मुक्ति की गल नहीं, खाड़े भी मुक्ति का संदेश पहुंचाना, तू बस तेरा काम यह है। और एक खाड़े विच मुक्ति है, जिस खाड़े की मैं गल कर रहा। और ध्यान नाल सुनो सब जने, जिन्हें भी मेरे भाई बहन दूर दरेडे तो सुन रहे हैं, वो प्रचार नूं सुन रहे, ध्यान नाल सुनो। की 34 ये शब्द नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? सिखाउंदा है। यीशु मसीह ने का धरती ते आके कोड़ा चलाया, क्योंकि उन्होंने पता लोगों के अंदर शैतान आ और शैतान ही प्यार भालदा आ। लेकिन बाइबल कहती है जिन्हों वो प्यार करता आ उन्होंने वो ताड़दा आ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਉਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? 12 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ 12 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ, ਸੱਚਾਈ। ਉਹ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਆਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ 12 ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲ और चंगे चंगे विद्वान लोग उस स्थान दे सीगे, चंगे 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 विद्वान लोग सीगे। लेकिन की होया, जो असली पहलवान उतरे मैदान च, सारे पहलवान भज गए। शरीर के पहलवान सारे भज गए। जो आत्मिक उतरिया, उन्हें आके अपने चुने हुए लोगों चुनिया, 12 जणियां नूं। हुण मैं तुहानूं ये पुछदा आ, वो 12 पहलवान किन्ने चुने? यीशु मसीह ने चुने, किसे किसे मनुख ने नहीं चुने। समझ नहीं आ रही कि उस टाइम ते वचन नहीं रद्दिया गया, वो शरीरक लोगों ने वचन नूं नहीं रद्दिया। उस टाइम भी ये शरीरक खाड़ियां च जांदे सीगे, उन्होंने यीशु मसीह दी गल्लां नहीं सी समझ लगदियां। क्यों नहीं सी लगदियां? क्योंकि शरीरक सीगे, वो शरीरक खाड़े च चलदे सीगे। लेकिन वो आत्मा दी गल्लां करदा सी। कहंदा जिहड़ियां मैं गल्लां करदा हां वो आत्मा हन। हुण आत्मा दी गल्लां वो आत्मा पाया बंदा ही समझ सकदा है। हुण शरीरक बंदा आत्मा दी गल्लां नूं कदी नहीं समझ सकदा। मेरे भैन भाईओ, आत्मा पाया बंदा ही आत्मा दी गल्लां नूं समझ सकदा। हुण मैं तां तुहानूं दोने खाड़े दिखा रहा हां। एक खाड़े भूत कढ रहा आ, एक खाड़े दे विच भूत कढ रहा आ, दुष्ट आत्मा निकल रही आ, अगम वाक कर रहा आ। लेकिन उहदा उस्ताद यीशु मसीह कह रहा आ, हे कुकर्म वालिओ, मैं तैनूं जानदा ही नहीं है। वधिया मिठी बोली जनानियां नूं मोरे करके प्रचार कर रहे हैं। वो जनानियां वधिया करके बड़े प्यार ने शब्द यीशु जी महाराज, लोकां नूं बुल्लां दे शब्दां नाल की कर रही है? आकर्षित करनी है। लेकिन जद कि पौलुस कह रहा है भी औरत नूं, औरत जिहड़ी है इस जोग नहीं है भी पुरपरदे होके प्रचार करे। कहना नहीं देता भी पुरपरदे करे। हुण सिद्ध घुल रही पौलुस ने कहा केड़ा आऊगा जेड़ा कायदे नाल खाड़े सब जान गए। हजारां लोग मैं पिछले समय में दसिया,
हज़ारां दी भीड़ प्रभु वाल सीगी। लेकिन जो प्रभु ने पिछे मुड़ के देखा, पहला ध्यान नाल गल नूं सुणन दी समझण दी कोशिश करो। यीशु मसीह हमेशा मनुक्खां दे विचों शैतान नूं दबके मारदा आ, क्योंकि उहनूं पता सी शैतान दा राज इदां दे विच है। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 70 ਮੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾंस ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, भी असी बंदे हैं, असी जानवर थोड़ी हैं, असी मनुष्य हाँ। लेकिन वो गल्लां नूं नहीं समझ सके। हुण इसे तरह ही ये भलवानी दी गल्लां नूं कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही कोने खाड़े की गल की। पौलुस ने खाड़े की गल की, वो बेजमान चीज की सुरा की गल की, तुरी की गल की, वो फिर दौड़ की गल की, शरीरक गल कर रहा, फिर उन्हें विआह की गल की, आदमी जनानी की गल की। पर उन्हें कहा यह सब भेतां विच है, ये सब भेत हैं। लेकिन भेत किने खोलने हैं? और दुल्हन ने खोलने हैं। उन्हें नबी ने खोले, नबी अज की कर रहा है, उन्हें दुल्हन को अगे लिया, दुल्हन अज भेतां नूं खोल रही है। और गर्ज की है? गर्ज आवाज है। और बहुत सारे लोग गर्जां वाले हैं, गर्जां की सब्जी बेच रहे, गर्जां की कोई किद्दां बेचता है, अपना अपना पसंद आई। लेकिन जो बंदा कोई सब्जी बेचता है, वो वैरायटी का दसदा है भी मेरे को गोभी है, मेरे को बैंगन है, आ चीज मेरे को पई है, तां ही वो लोग लऊगे। वो कई गर्जा ने गर्ज की है पता ही नहीं है। लेकिन जो गर्ज एक आवाज है, वो कहना आवाज की है। जो दूजी गर्ज हुई, दूजी मोर, एक गुण नहीं हन, एक गर्जा हन। सत आवाजा की हन, 7 दूतां दी आवाजा की। वो जिद्दां मैं एक गर्जे का खुली, पहली मोहर खुली, जो दूजी आवाज आई, दूजी गर्ज खुली। और नबी साडे ने कहा जो एक दूत आंदा सी दसदा सी, उन्होंने अपनी सत्ता ने अपने बारे दस्या। जो एक दूत कमरे च आंदा सी, अपने दसदा सी भी मैं की कीता। नबी फिर वही गल्लां दसदा सी, दूजे ने दस्या, तीजा आया, तीजे ने दस्या, ये अपनी अपनी हिस्ट्री सुनाई, दसी। हालेलुया। ये सब गर्जा हन। एक की है मोर। गर्जा नूं, गर्जा कोई वक्री नबी ने गर्जा बारे दस्या। जो असीं ये गल करते, एक कहता दूत आंदा अपने बारे, उन्हें क्या कोई भी मोर मैनू नहीं पता की बोलना है। जो महाबली दूत आंदा है, क्योंकि लेले तो बिना कोई मोरा खोल सकता ही नहीं सीगा, क्योंकि लेला आंदा सी, मोर दसदा सी है। आमीन। और ये मोर है जड़ी खुदा दा धन्नवाद करदे, प्रगटावा और दुल्हन ते होना है। एक खाड़े में है, पता लगूगा वो खाड़ा नहीं जाओ। एक खाड़े में फल की खादा गया, ये वो खाड़ा है। एक खाड़े में लहू का की प्रकाशन है। एक खाड़े में हाबल किथों प्रकाश, फूंगनी वाले नहीं चलने, इत्थे खुदा दी खल चलनी है। इत्थे पहरावा खाड़े विच और यसू मसीह दा पहरावा चलना है, जेड़े खुदा ने उन्हां वास्ते अपने आदम ते हवा दे लई। इत्थे फूंगनी दे पत्ते नहीं चलने, इत्थे
ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਝ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਖਾੜਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਹਾਂ। ਘੁਲੋ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਲਦੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਾੜੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਸ ਖਾਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਬ ਲੈ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾੜਾ। ਕਾਸ਼ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਕਢਾਏ, ਬਰਕਤ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਫੋਨ ਕਰ ਦੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਖਾੜਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਅਗੰਬਾ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁਕਟ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁਬੈਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾੜੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਖਾੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੇ 12 ਚੁਣੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 12 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 11 ਦੇ 12ਵਾਂ ਪੌਲਸ ਆਇਆ। ਮਥਿਆਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਓਏ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਖਾੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇ ਘੁਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਣਾ, ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘੁਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕਰ ਤੱਕ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੁਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕਰ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਤੀ 10:34 ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ मैं धरती ते कोई मेल कराउण आया या मेल कराउण नहीं, सगों तलवार चलाउण नहीं आया। हुण यीशु मसीह तलवार चलाउंदा आ। और तुसीं दसो मैनूं, वो तुहाडी भाषा नाल तां ओह कहंदे भी प्यार कर, आ जिहड़े प्यार नाल बोलदे यीशु जी महाराज तमाम तरह नाल, क्योंकि लोग भोले बैठे हैं, उहदा पता नहीं आए आ भूत कढाउण लई। अब कोई चंगे काम हो जाए साडे किसी ने यह नहीं किया होना मुक्ति क्या, किसी ने क्या मेरा भांजा सही हो जाए, मेरा बिनो हट जाए, मेरा प्राण मेरे प्रभु को जावे। क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है, क्योंकि जेडे सामने जड़ा प्रचार कर रहे हैं उन्होंने समझा रहे हैं जिन्हें प्यार की, ते फिर आप प्यार कर रहे हैं यीशु पढ़ रहे ध्यान नहीं आया। हम समझदा जो तलवार चलती है की हुंदा वड्डण वढाई। तलवार का मतलब की सी, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ वचन लैके धरती ते आया, वचन कट्टन आया। धी नूं ओहदी मां तो अते नूह नूं ओहदी सस तो अड करन आया हाँ। देख लो हुण मैनूं दसो प्यार कर रहा प्रभु, क्योंकि पादरी लोग ये वचन दसदे ही नहीं। ये वचन जिहड़े आ मुक्ति नहीं है, ये वचन मुक्ति दे बच्चे जो सुनावांगे किसी नूं तुहाडी कलीसिया घट जानी है। क्योंकि प्रभु आ जिहड़ा मां नूं लग करावे, धी नूं मां तो लग करावे, प्यो नूं पुत्त तो लग करावे, जनानी नूं आदमी तो लग करावे। एक कमाल दा प्रभु आ। इहदे नाल तां पहला जिहड़ा प्रभु पहला जिहनूं मनदे उही चंगे आ। लेकिन सच्चाई यही है, जे मुक्ति लैनी है तो फिर धरती नूं छड्डना पैना है। उहदा प्रभु तैनूं की आखदे हन, उस कोल यूहन्ना उहने कहा कोई तैनूं यूहन्ना देने वाला कहता है, कोई पिछों कोई यरमिया कहता है। उन्हें कहा जो कहते ठीक, उन्होंने उन्होंने कहा तुसी हो, कहना तुसी दो, कहता लोगों को छड़ दो, लोग की कहते कोई गल नहीं, पर तुसी मैनू की कह रहे हो। मैं जो मैं को और जिन्ना चिकर एक मनुख नूं ये नहीं पता कौन है, उन्ना चिकर उहदा नहीं है। मैं तुहानूं दस्सण लगा यीशु मसीह जिहड़ा वो परमेश्वर है, वो खुदा आ। हुण जिहड़ा खुदा सीगा वो भांडिया दे कोल पहलवानां कोल खड़ा सी। कौन सीगा? वो पहलवानां नूं बनाउण वाला यीशु मसीह, वो पहलवानां दे कोल खड़ा सी। हुण पहलवानां नूं पुछ रहा भी मैं कौन है दस। वड्डी गल आ। हुण जे तां कोई शरीर च बंदा हुंदा उन्हें कहना सी तू तां यूसुफ दा पुत्तर है, तू तां आया। लेकिन जिहड़े उहदे पहलवान सीगे उहदे नाल रहिंदे सीगे, पहलवानां नूं चुनिया सी उहने, जिहड़े दुनिया नूं बनाया
ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और जुगो जुग इक्को जिहा है। और कभी भी प्रभु ने कहा, सुलेमान ने कहा कोई धरती के उत्ते इहो जी चीज नहीं है जिहड़ी नवीं है। जो कुछ हो रहा ये पहला भी हो चुका है ते हुण भी वो पहला भी है। ये कोई नवीं चीज़ां नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने फिर दोबारा बाइबल के पिछे ही आना है। उन्हें घूमना खुदा दे, हालेलुया। वो बाइबल के इंसान नूं रखता है। अज भी उदां दा खुदा आया। प्रभु दा धन्नवाद करते हैं। जो मैं कौन हाँ, तू मसीह तन है शमौन बड़ा योन कहना भी क्यों शरीर अते लहू ने एक गल तेरे उत्ते प्रगट नहीं की। शरीर ते लहू भी एक गल प्रगट नहीं कर सकते। शरीर ते लहू कदी भी, शरीर ते लहू कदी भी इस शरीर ते लहू कदी भी जे कोई ऊपर जाएगा और शरीर ते लहू तो बाहर होके, शरीर ते लहू कदी भी उन्हें राज भागी नहीं होंगे। उन्हें कहने का भाव सीगा शरीर ते लहू मैनू नहीं पहचान सकता। शरीर ते लहू कदी भी वचन के प्रकाश नू नहीं समझ सकता। हालेलुया। ये वो खाड़ा है। हुण देखो कहता, उन्हें कहा तू मसीह है। उन्हें कहा ये जी गल है मेरे पिता ने जो स्वर्ग है उन्हें तेरे ते प्रगट की है। यानी ये हॉली स्पिरिट ने गल प्रगट की है। हुण हॉली स्पिरिट कित्थे आ? हुण ये और अपने बारे ही अपने भलवानां पुछ रहे हैं, अपने भलवानां पुछ रहा भी मैं कौन है दसो, भी वह छड़ दो दुनिया नूं। अज दुनिया नूं तुसीं छड़ दो, जिहड़े मेरे भाई बहन घर बैठे सुन रहे दुनिया नूं छड़ दो, भीड़ां नूं छड़ दो, कोई भी छड़ दो। तुसीं की कहंदे अपने हृदय भी यीशु मसीह कौन आ? मिठियां बोलियां बोलने वाले छड़ दो, पर तुसीं की कहंदे हो भी यीशु मसीह कौन आ? यीशु मसीह ने खुद गया इसराइल का इक्को ही खुदा आया। जिहड़े बाइबल पढ़ते हैं सुनो ध्यान नाल, उन्हें कहा इसराइल का इक्को ही खुदा आया। हालेलुया। उन्हें कदी यहूदी कदी तीन खुदा नहीं मानते। शैतान हमेशा तीन खुदा कहता है। यीशु मसीह ने खुद कहा भी परमेश्वर है, इक्को ही परमेश्वर है। जिन्ने भी लोग सब इक्को ही परमेश्वर कह रहे। हालेलुया। हुण ये कहता पुत्र मसीह, हुण इन्हां 12 इसराइल दे विच लखां ही लोग सीगे। ते की अज फिर उदा नहीं होएगा? अज भी उदा ही होना है। ये मुकाशवा आम दुनिया ते नहीं खुलना। ये जो रेवलेशन है आम लोगों ते नहीं खुलना। ये प्रभु दे संतां दे खुलना और दुल्हन दे हिस्से दे खुलना है और देह दे उत्ते चीज़ां खुलनियां है। और बहुत सारे लोग कहते हाँ जी हाँ जी कष्टकाल तो पहले ही दुल्हन उठाई, दुल्हन कष्टकाल ही देखूगी। लेकिन नबी दे संदेशों को ध्यान नाल समझो। कहता भी दुल्हन जिन्ना चिकर तक दुखा की कुख च नहीं जाती और निखर के बाहर नहीं आएगी। दुल्हन हमेशा ही दुखा की कुख च जाती है, फिर वधिया निखर के बाहर आती है। हालेलुया। जे अज दुख है देखो तुसीं हुण दुख किन्ना दे आ, जिहड़े ओहदे लोग हैं उन्हां ते भी दुख है तो दूजे लोगों ते भी दुख है, सब दे उत्ते है। ये नमूना तुहाडे सामने रखिया है। और फिर उन्हें कहा जो दबा आएगा और एक भारी दबा आएगा
और मैसी दी चर्चा नूं ताले लगणगे, एक भारी दबाव आएगा, वह भी दुखी है, वह भी दुखी है। हालेलुया। लेकिन जो कष्ट काल आना आ, लेकिन दुखा जो लंघना ही पैना भराई नूं। हालेलुया। क्योंकि दुखा जो लंघ के उन्हें ऊपर जाना है। जिदा एक कहावत है, कहते जो बंदा किसी भी चीज चो लंघदा आ, किसी भी दुख चो लंघदा आ, उन्होंने उदों एहसास हुंदा आ, क्योंकि उस चीज चो जो लंघदा है, जो चीज छुट जाती उहदे कोलों फिर वह पछताउंदा आ, फिर वह दुखा जो लंघदा आ, दुखा उन्होंने पता हुंदा। जिदा मैं कहा दुख किसी को कोई पता नहीं लगना, जिदा अकल बदनामी अकल नहीं होती, ठोकर खाना होती है। जो बंदा ठोकर खाता फिर उन्होंने क्यों ना रोटी खवा, बगाना नहीं कोई खवांदा उन्होंने। हालेलुया। फिर सब कुछ याद होता है, फिर मैनू सब याद आ गया, ये उदा ही है, ये फिर याद बंदा कर जो उन्होंने प्रभु ने होन दिता, प्रभु सी दुनिया का उन्हें कोई हथ पा सकता नहीं, कोई नहीं पाया किसी ने, कोई नहीं पाया। पर जो करना मैं, उन्हें कहा यीशु कौन है, उन्हें कहा मैं हूं, तो जो उन्हें कहा मैं हूं वो सारे जग पे। हालेलुया। क्योंकि वो हैगा सी, वो हुण भी मौजूद है, वो है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है। एक कोई नाम दिता गया धरती से, वो है यीशु मसीह, और यीशु मसीह परमेश्वर है। और प्यार करनी आया हो ना, ਉਹਦੇ चेलिया ने कभी प्यार किया गया। प्यार दो तरह के हैं, एक फिलिपियो प्यार आ, एक अगापे प्यार आ। पहली गल तो लोगों को यही नहीं पता प्यार की है। हालेलुया। वो प्यार किनू समझते हैं, प्यार जो करना है तो फिर प्रभु यीशु मसीह नूं, ये नहीं भी मम्मी नूं प्यार करो, डैडी नूं प्यार करो, ये प्यार नहीं है। दुनिया किनू पालती है, शरीरक प्यार नूं पालदी, मेरी कुड़ी, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरी अम्मा, ये प्यार झूठे है। अज मम्मी चलेगी फिर की करूंगी, मुक्ति का प्रचार जरा ये खाना नहीं है, ये बिच तां सब को कटना पैंदा जरा अगे आ जाए। ये खाना वो आ, अज कई ने प्रचार सुनिया वाला, पर जेडे इत्थे दी मरसी चर्च के लोग हैं उन्होंने सब वो इस चीज के आदी हो गए आ। वो जिदा चिर तक वो चीज उन्होंने नहीं मिलती, वो आनंद में नहीं आते। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पता है असलियत की है, सच्चाई की है। हालेलुया। हुण जल्द मान लो भी किसी को 10,000 5,000 लोग इकट्ठे किए भी होए या 50,000 कुछ भी ला लो, पर जे बचा ही एक ना, जे इन्नी दुनिया में खुदा ने पहली गल यीशु मसीह नूं समझो, जे यीशु मसीह धरती ते आके 12 नूं चुनिया तो फिर अज की करूगा, हो अज लखा च लैके जाऊगा, वो खुदा आ, वो पूरी पहचान जिन्ना चिकर अपनी नहीं कराउंदा कोई नहीं बचना। सब तो वड्डी आ उदू समझना, उन्होंने जानना, पहचानना, उहदे नाल संगति करनी, उन्हां चिकर तक वो गल्लां वो चीज़ां नूं नहीं कोई बंदा समझ सकता। हालेलुया। फिर उन्हें कहा सब मास जिहड़े आ वो ये गल्लां नहीं समझ सकते। फिर उन्हें कहना मैं तेरे उत्ते हुण कहंदा अपनी कलीसिया बनावांगा। उन्हें कहा तू पतना तेरे उत्ते मैं अपनी यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनावांगा, उस कलीसिया अधलोक दे फाटकां दा कोई हक नहीं होएगा। और जेड़े लोग इस खाड़े विच घुलदे हन उन्हां उत्ते कदी भी मौत दा हक नहीं है। उन्हां लोकां दे कदी मौत दा हक नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा दा कलाम है। जेड़े लोग कायदे नाल घुलणगे, हुण इह कायदे नाल घुल रहे
कोई नहीं कायद नहीं खोलता। हुण जदों यीशु मसीह चले गया धरती तो, मनुखी जामा छड़ दिता, फिर जदों वो शरीर वो होली स्पिरिट जो प्रेरितां दे अंदर आ गया 120 की जमात दे विच, हुण उहदे खाड़ा खोलना सीगा पतरस ने। हुण पहले ही दां उहने सिखाया खाड़े दा। उहने कहा भाई हुण असीं की करिए? यहूदियां ने उहनूं कहा भी असीं बहुत गुनाह कर चुके हैं, असीं मसीहा नूं सलीब दे दित्ता, हुण इहदी बचा हैगा? वो कहंदा हैगा तुहाडे कोल। कौन कह रहा? पतरस कह रहा। यही तो लोगों ने अज समझ नहीं आई। लेकिन यीशु मसीह और अंदर सी पुस्तक पढ़ो, खुद आप ही बोल रहा सी अंदर। हालेलुया। उन्हें कहा जे तू एक खाड़े चोना, पहला दा तेन सिखाना आ, पहला दा सिखाना तेन मैं। जिन्होंने पहला दा सिखाया उन्हें कहा तौबा करो, हर एक अपने पापा की माफी दे लई यीशु मसीह ने नाज बपतिस्मा लवे, ता पवित्र आत्मा दान पाओगे। ये है पहला दा इस खाड़े दा। हालेलुया। हुण तू दस भी ये खाड़े दा दा, तू कहना मैं खाड़े जे जाना जे दा लै सकदा है, जा। ये खाड़ा, ये खाड़ा दूतां दा है। आप खड़े जे मुकुट ये पहला दा आ जिहड़ा साडे पहलवान पतरस ने, साडा पहलवान सब तो पहला जिहड़ा आ पतरस सीगा, उन्हें पहला दा सिखाया। कहंदे आ दा आया तेनू धोपी पटका मारा पहला। हुण जदों ये दा दसदे आ अगला जो भी, ये तां दा बड़ा औखा जी, ये दा बड़ा औखा जी। खाड़े च होना आ, मुकट चाहिए। तो यीशु मसीह ने गल्लां भी याद करो, वो की कह रहा, पौलुस की कह रहा। उन्हें अपने अंगां नूं कट्टिया, सब कुछ कट के फिर मुकट की चीज लई। हालेलुया। इदां नहीं मिलती। ये दा उन्हें शुरुआत की थी, अगे पौलुस के बारे वर्णन किया। हालेलुया। लोग इदा ही मिल जाए, इदा नहीं है। ये जो भी लोग बाइबल का प्रचार करते हैं, कह लगे भी बहुत शर्म आती है। अज पब्लिक चाहती है भी यीशु मसीह सानू सब कुछ दवे, भी असी यीशु मसीह को कुछ ना दईए। और यीशु मसीह भी अजकल बहुत चाहते, इदा नहीं है। इदा ही चलना जिदा पौलुस ने जे मुक्ति की लाइन च जाना तो फिर आ रस्ता आ। ध्यान नाल जिन्ने भी नबी आए, सुधारक आए, प्रभु यीशु मसीह धरती ते आए, जिहड़ा साडा सर्जनहार आ, सब जिन्हें जो धरती ते आए, एक बंदा नहीं है जिहड़ा सुख लंघिया। हर एक बंदे ने दुखों के विचों लंघिया। कईयां ने कुछ छड्डे, कईयां ने कुछ छड्डे। अज कोई भी बंदा कुछ अज तक सारे कहते दे दे भाई, ले जान। मेनू जायदाद कहते थी यीशु पहला मेकअप दे मुक्ति चाहना, पहला उन्होंने पहरावा, बाल कटदियां, परबट्टे बनाउंदियां, सब खत्म करन, सब कुछ खत्म कराउन, दसन लभना उथे उथे कोई पुछ गिछ नहीं है, खुला खाड़ा आ। लेकिन पौलुस उन्हां दे खाड़े च आके पहला अपना बाहरला ऑर्डर मैन सही करना पैंदा आ, फिर अंदर खाड़े दे एंट्री हुंदी आ। सब तो पहला तो इत्थे ही जिहड़े जनानियां को डरदे आ वो खाड़े च वड़ जाणगे, कदी नहीं वड़ सकदे, कदी वड़ जाणगे, कदी नहीं वड़ सकदे। उन्होंने खाड़े वड़ लगे कंबना आ, वो खाड़े किद्दां चले जाणगे? हालेलुया। नहीं जा सकते, वो कह सकते भी असीं भी जाने
पटका नहीं पैना। और तेरी उन्हें कोड़ा बनाया, लोगों को सप्पां दे बच्चे किया, यूहन्ना ने कुहाड़े बारे गल की, जंगल बारे गल की, लोगों को बचाना ते उन्होंने कड़वी भाजी दिओ, उन्होंने प्राण बचन। अज भी मुबारक हो। इसे तरह ही परमेश्वर ने मां के गर्भ तो ही चुन लिया सीगा, अपने बड़े भरा को उहदा जेठे होने का हक ले लिया। वो हक ले कोई उन्हें गुनाह नहीं किया, उन्हें अपने हक नूं ले लिया। लेकिन उन्हें अपनी मां के कहे ते जिहड़ी बरकत सीगी सीगी, वो जिहड़ी बरकत सीगी उन्हें अपनी मां के कहे ते वो इसहाक को धोखे ना लै गया। धोखे ना वो चीज लै तो गया, हुण उन्होंने अंदर बेचैनी लग गई, ईसाऊ उहदे मगर पै गया भी मेरी ये चीज लै गया आ। उन्होंने की होया, उन्होंने फिर बोलना पिया। और जो मैं गल रखनी चाहना ध्यान ना सुनो, वो हुण चले गया अपने मामे दे कोल चले गया। जो मामे कोल गया तो उत्थे जाके उन्हें मामे को गया, वो चीज बरकत ओहदे नाल सीगी, लेकिन वो ओहदे अंदर वो चीज क्योंकि चुनिया सी मां ने गर्भ, इस करके मसे थले सी वो। लेकिन जो ओहदे कोल गया, लेकिन उन्होंने एक संघर्ष करना पाया, दुख झलना पाया। 7 साल उन्हें अपने भेडा चारियां एक औरत नूं पाउण दे लई, दुख चलिया। और की होया, धोखे नाल उहदा कर दिता, लेहा दा ब्याह कर दिता। उन्हें कहा भी तू मेरे नाल की कीता, उन्होंने याद आया यकूब नूं भी मैं भी हालेलुया, क्योंकि इंसान। फिर उन्हें कहा, फिर 7 साल भेडा उन्हें चारियां, दोबारा फिर उन्हें 7 साल लाए, फिर उहदा ब्याह जरा खेलना। भेडा भी उन्हें बधा लिया, भेडा भी उन्हें भेडा च चित्रियां बना लिया ला के, सारे थां उन्हें एक काम करके इज्जत हो गया। पहला वो इस खाड़े च घुलदा रहा, शरीर के खाड़े च। उन्हें जनानियां प्राप्त की, शरीरक गल्लां, भरा नूं दाल खवाई, शरीरक काम, सब कुछ शरीरक। समझ आ रही है? इदा ही असी लोग सीगे, शरीरक काम लै रहे सीगे, एक खाड़ा शरीरक सीगा। लेकिन उन्हें जो सब कुछ लै लिया, सब कुछ कर लिया, चीज दे ली, हो गए। वो तो यह भी कह सकता सी भी मैनू हुण आनंद आ, मैं अपना जीवन वधिया गुजारना चाहता, लेकिन ओदे अंदर सीगा, ओ चीज नूं लैना चाहता सीगा, जिहड़ी चीज उहदे कोल नहीं सी, हजे तक उहदे कोल चीज नहीं सी। कई भाई बहनों को चीज नहीं हैगी हजे। ओ नबी ने कहा लाड़ी ओ अपनी सामर्थ नहीं है, कहता जो आवाजा उठाए जान का उस देशा के राही परमेश्वर ना होई
क्योंकि मैं तुहानूं एक गल दसनी चाहुंदा आ, जिन्ना चिकर बंदा घुलदा नहीं आ उहनूं वो चैन नहीं होनी, उहनूं कदी चैन नहीं आ सकदा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता यकूब बाहर आएगा ते चैन पाएगा। यकूब तू इसराइल तू बाहर आएगा ते चैन पाएगा। देखो सब कुछ बच्चे पत्नियां सब लेकिन वो जी चीज चाहता सी वो नहीं सी को नहीं सी। कई लोग की छो परे की करना है ना, आही बहुत कुछ है। इदा नहीं है क्योंकि वो अंदर ही वो चीज नहीं, वो कहीं लै लूगा। जिन्हें सारी उम्र इदा ही दुनिया ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ थोड़ी चाहिए। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ना चाहिए। आके उन्हें अपने भरा मिलदा जाके असाऊ नूं मिलदा, उन्हें अपने पहला मेरे बच्चों को देख के खुश हो जाऊगा। उन्हें उही भेजना सी भी मेरे भरा का गुस्सा किस तरह ठंडा हो जाए, मेरे बच्चों को देखूगा, मेरा भरा वधिया अमीर हो गया देखूगा, है ना, खुश हो जाऊगा, ईसाऊ मैं खुश हो जाऊगा। उन्हें पहला देख सब कुछ भेज दिता, बच्चे भेज दित्तियां, नजराने सी सब कुछ भेज दिते। लेकिन डरदा सी विचों भी ईसाऊ मैनू मार, ईसाऊ गुस्से वाला सीगा। लेकिन यकूब दे अंदर एक होर चीज सी, वो चीज उन्होंने लैनी सी, असली घोल उन्हें करनी सी, असली खाड़े च उन्हें जाना सी। तां तो पौलुस ने खाड़े की गल की, पहलवानां की गल की। और इस खाड़े में कोई आम लोग मैंने बचाने दे लई जो बत्ती है तो स्टार्ट करते 22 तो उन्हें सारिया दोवें पत्नियां अपनिया दोवें तीवें गोलियां 11 पुत्र सब कुछ भेज दिता। तो उन्हें उन्होंने लैके नाले तो पार लंघिया और पार लंघा दिता। तो यकूब इकला रह गया, इकला। उस टाइम उन्हें सारा शरीर उन्हें छड्ड गया। बड़े ध्यान नाल सुनो, सारा शरीर उन्हें छड्ड गया, सारा शरीर उन्हें छड्ड गया। हालेलुया। पहला शरीर ना चिमड़िया सी, पहले खाड़ा देखा जिहड़ा मैं क्या शरीर है, सारा शरीर छड्ड गया। सारे शरीर दी चीज़ां लथ गई, सारिया वस्तुआं, भेडां भी चले गई, पुत्र भी चले गए, तियां भी चले गई, जनानियां भी चले गई, सारा शरीर चले गया। बाइबल कहती वो कला रह, हालेलुया, वो कला रह गया उत्थे, कला ही। जो कला ते उन्हें उस नाल एक मनुख दिन चढ़ो तक घुलदा रहा। एक जो कला रहा, ध्यान नाल सुनो, जो शरीर छड्ड गया ते कला रह गया, फिर एक मनुख उहदा दिन तक घुलदा रहा। और इसे ही खाड़े की गल पौलुस ने उत्थे जाके कीती। ये खाड़ा आ जिहदी मैं गल कर रहा हां मेरे भैन भाईओ, ये खाड़ा आ, हालेलुया। ये खाड़ा वो आ जिहदी मैं तुहानूं गल कर रहा, कला ही रह गया। और एक मनुख आया, दिन तक उन्हें घुलदा रहा। तो जद वेख्या कि मैं इसनूं जित नहीं सकता, तो उस मनुख ने वेख्या भी मैं इहनूं जित नहीं सकता। हुण घुलिया किदां? साडे नबी ने कहा ये आत्मा दे नाल उन्हां सारी रात घुलदा रहा, ये परमेश्वर दा घुलदा रहा, दूत ना, महाबली दूत ना घुलदा रहा। हालेलुया। उन्हें देखा भी, दूत ने देखा भी ये मैं जान नहीं दिंदा, हुण छड्ड नहीं दिंदा। हालेलुया।
जे शरीर के पक्षों देखो दूत ना कोई घुल सकता, शरीर के पक्षों कोई दूत ना घुल सकता आ, कोई नहीं घुल सकता। हालेलुया। जकूब नूं ऐ कहना, जकूब ने लभना नहीं सी। हालेलुया। क्योंकि महाबली दूत सीगा, यीशु मसीह सीगा। हालेलुया। क्योंकि ये मां के गर्भ च चुनिया होया सी। हुण इहनूं त्रास सीगी, पर किदों होया? जदों इहनूं शरीर छड्ड गया, शरीर तो कला हो गया। तो प्रभु का धन्नवाद होवे, जो कला हो गया तो फिर दूत आया, दूत नाल दा घोल होया। हालेलुया। तो उन्हें कहा भी मैं इहनूं जित नहीं सकता, तो उसने पट के जोड़ के उत्ते हथ ला दिता और यकूब के पट का जोड़ उस दे नालों घुलन के कारण निकल गया। पूरा जरा पट, ताई तो इसराइल पट का मीट नहीं खाता कभी, क्योंकि यकूब का जड़ा सी वो पट जड़ा सी इदां घुलन के नाल, जानी कि उसकी चाल बदलती सी। खुदा ने यकूब की चाल ही बदलती, उसका चेहरा बदलता, उसका सोल बदलता, उसका रंग रूप बदलता। हालेलुया। तेनू याद होना सब लोग नबी ने कहा जो मूसा खुदा की हजूरी च गया वो बदल गया, वो बदल गया। पौलुस जिला की हजूरी च गया वो बदल गया, यकूब जिला की हजूरी च गया वो बदल गया। जे अज भी कोई मनुख और हजूरी च जाता है तो बदल जाता है, और हजूरी जो खाड़े जो जाके घुलता है वो बदलता है। हालेलुया। वो बदल गया, प्रभु का नाम मुबारक होवे। पर किदों बदले जो वो कला रह गया, अपनी जनानियां नूं भेज दिता, अपने बच्चों नूं छड्ड दिता, अपनी जायदाद भेडां बकरियां सब परवाह नहीं की, गोडे टेक ले, कहना लॉर्ड मैनू तू चाहिदा, मैनू तू चाहिदा। हालेलुया। लेकिन इन्नी जल्दी नहीं मिलिया, जे तुसी को किन्ने साल लाते नूं मिलन लगे। अज मुरुख कहंदा साल एक जाके कहंदा मैं यीशु मसीह नूं मिल लिया 2 साल ला के कहंदा मैं यीशु मसीह नूं मिल लिया। मैनू समझ आ गई, काहदी समझ आ गई? हजे तक तेनू शरीर चों निकलना नहीं बाहर आया, शरीर चों बाहर निकलना नहीं आया। भावें तेन 5 साल लग गए, 4 साल लग गए, हजे तू शरीर च ही है। शरीर जो जो निकलना सीख गया तो फिर समझ लो तेरी मुलाकात प्रभु ना होगी। शरीर जो निकलना, चर्च आना, दसवां हिस्सा देना, जाना, ये गल कुछ हो रहा, शरीर च निकलना कुछ हो रहा। ठीक है, हर चीज का एक लहदा लहदा एंगल है। शरीर चो निकलना ये गल कुछ हो रहा। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। जो भाई बहन प्रचार नूं घर च बैठ के सुन रहे हैं, लाइव होर भी देख रहे हैं, प्रभु अंदर बहुत सब नूं बरकत देवे। हुण जदों सब कुछ चले गया, उन्होंने सब कुछ कला रह गया, घुलिया, तो फिर खुदा उहदे पट नूं हथ लाया, वो निकल गया। तो उस आख्या मैनू जान दे, क्यों जो दिन चढ़ गया है। उसने आख्या मैं तेनू नहीं जान देंगा। हुण कोई जान दिंदा आ? जे मेरा संबंध प्रभु ना बन जाए तो मैं कभी कहूँगा प्रभु जा, मैं ना प्रभु बैठा ही रहा, मैं नहीं जान देना। और खुदा नूं इहो जिहा भगत चाहिदा जिहड़ा कहे यीशु मसीह नूं मैं नहीं जान देना। हालेलुया। खुदा नूं इहो जिहा बंदा चाहिदा अज जिहड़ा कहे मैं नहीं जान देना, मैं नहीं जान देना प्रभु। उन्हें कहा प्रभु मैं नहीं जान देना, जिद पै गया। और किहड़ा जान दिंदा जिन्हों आनंद आउण लग जाए? जान दिंदा। इस करके लोगों को आनंद नहीं है, लोग तां ही जान दिंदे आ। वो 2 मिनट दी यीशु मसीह नूं बुलाउंदे आ, फिर चले जांदा। हालेलुया। जिहड़ियां मुक्ति शरीर दे अखाड़ा नहीं है, इत्थे मुक्ति दे अखाड़ा आ। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। हुण जान, उन्हें कहा जान दे
ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਯਾਕੂਬ ਕੋ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗੇ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਬਰਕਤ ਕਹੀ ਉਹਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਬਰਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਫੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤ तेरा जिस्म बदले बरकत है। हालेलुया। ये लोग बरकत क्यों भालते हैं? मुंडा बाहर चले जाए, कोठी बन जाए, मेरी जायदाद नूं संभाले, सब कुछ की होगा। ये बरकत है क्योंकि सरीरक मनुख वस्तुओं के उत्ते खड़ा हुंदा, आत्मिक मनुख चीज़ां ते। हले प्रभु का नाम मुबारक। बरकत हो कई लोग समझते याकूब नूं बरकत मिलनी है, बरकत मंगी उन्हें, पर असली बरकत उन्हें पता नहीं सी अंदर घुल रहा है, घुल रहा कोई होर भी आकर घुल रहा नहीं। बच्चे सी उन्हें को सब कुछ सीगा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने किसी चीज की तराज सी, वो बरकत मारे। सुलेमान ने की मंगे? बरकत नहीं, उन्हें बुद्धि मंगी। जड़े खुदा दे प्रेमी हैं वो शरीरक बरकत नहीं मंगते। तेरा साह मेरे चावे, भेडा मेरी आवाज नहीं सुनती, भेडा सुनती। उसे बरकत किया उन्हें, उन्हें सब कुछ हुण कला रहना उन्हें बरकत नहीं लैनी सी। जिदा लोग कई तपस्वी लोग कहते, कई लोग प्रार्थना करते भी प्रभु सानू आप बरकत दे है बरकत। ये तुहाडी बरकत। विश्वासी लोग हैं उन्होंने बरकत की है। भैन हैटी राइट की बरकत की सीगी और बच्चों की मुक्ति। जो पता लगा भी पुरबड़ ते हुण यीशु मसीह आ गया है, उन्हें क्या भैन हैटी हुण मंग तू की। नबी ने कहा जे वो चाहती तो डॉलर मंग पीर हो सकती सी, एक कुर्सी बोली बरकत मंग सकती सी। लेकिन महाबली दूत नूं ओहदा नाम नहीं पता सीगा। क्या मैं धोखेबाज आ? क्योंकि साफ कर रहा सी। खुदा कहना जो तुसीं कहंदे मेरे गुनाह प्रभु मैं पापी हाँ, खुश हुंदा क्योंकि रखता। कहता मेरा बच्चा कह रहा है भी मेरे बाप मैं पापी हाँ। ना की है हुण ये थोड़ी भी उन्होंने ना ही नहीं पता ਉਹਦਾ। ठीक ना पता सी लेकिन ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ क्योंकि ਯਕੂਬ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਉਹਨੇ कहा उस आख्या यकूब भी मैं अच्छा उन्हें कहा उस आख्या तेरा नाम हुण तो यकूब नहीं
आख्या जाएगा, सगों इसराइल क्यों जो तू परमेश्वर अते मनुखा नाल युद्ध करके जित गया है। हालेलुया। उन्हें कहा तू युद्ध करके जित मनुखा नाल जित गया है। हुण तू इस चीज का हकदार है, तू इस मुकुट का हकदार। बरकत दी। उपरंत यकूब ने उस स्थान का नाम पेनियल रखिया, जिन्हों असी पेनियल ने उस स्थान पेनियल रखिया, क्यों जो उसने परमेश्वर को आमनो सामने वेख्या। उन्हें खुदा ना मुलाकात कर ली, घुलिया दूत ना घुलिया। ये खड़ा हुआ जी मैं गल पौलुस दूता घुलना आ शरीरक बंदे, ये सिर्फ ਜਿਹੜੇ आत्मा पाए लोग आ उन्होंने बस दी गल्लां हाँ। हालेलुया। तो धन्यवाद प्रभु। और गया कर लिया खुदा सामने, और तद वो पैनुअल तो पूरा चढ़ गया सी अपने, क्योंकि लंगड़ा हो गया सी। और खुदा ने और चार बदलती, हर चीज और बदलती, क्योंकि आमना सामना परमेश्वर का दूत हो गया खुदा के नाल। हले बाइबल इसे तरह दस रही है। इसलिए इसराइल उस नाड़ी के पट नूं जिहड़ा पट के जोड़ उत्ते है अज तक नहीं खाते। बाइबल लिखा वो अज तक भी ये नाड़ी के जोड़ नूं नहीं खाता इसराइल, क्यों जो पट नूं पट्ठे नूं पट जोड़ कोलों हथ नाल ला दिता सी, अज तक भी नहीं खाते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे। ये खड़ा हुआ जिथे कोल प्रभु नाल है, ये लोगों को समझ नहीं है। हालेलुया। ये समझते खाड़े कि आप खाड़े घुल सकते आम बंदा कि उन्होंने पहला दाह का पता है, पहला दाह जो पाता है भज लेंदा है, फिर दूजा दाह आ, फिर तीसरा दाह आ। जो दाह बाई दाह सिखाना चाहते उन्हें समझ नहीं आनी। वो कहते बाइबल इदा थोड़ी बोलती है, बाइबल लिखा सेब खादा सी चीकू। जो इस खाड़े तुम जाने हो छुपियां पता समझ आती है, शैतान बारे समझ आती है, शैतान कित्थे लुकिया होया कित्थे छुपिया होया, इस खाड़े के अंदर जाके पता लगता। उन्हें पता ही नहीं है, लोगों को पता नहीं लगन देता, आके लोग छुप जाता है। इस करके जो ये गल्लां बोलते हैं ये कोड़ियां लगदियां, समझ नहीं लगदियां। इसे तरह ही रूथ के बारे थोड़ी गल करते हैं, आरपा बारे, नोमी के बारे, ये तीन। और जी नोमी सीगी वो असली खाड़े जो निकल के शरीरक खाड़े च आ गई। जो छड्ड के मुक्तिदाता के घर छड्ड के उस उत्थे आके उन्हें की किया, अपना पति भी गवा लिया, रंडी हो गए, नाल नूहां सी वो भी रंडियां हो गई, तिन्ने ही रंडियां हो गई। हालेलुया। बाले खाड़े जाके देख लो की मिले, मौत। पर जिन्ना चिकर तक वो परमेश्वर के खाड़े च सीगी, ओहदा पति भी जींदा सी, ओहदे बच्चे भी जींदे सीगे। हालेलुया। लेकिन वो जो गवा लिया उन्हें बड़ा पछताई, बहुत पछताई। वो फिर उन्हें सोचा भी मेरा हम सब कुछ तो खत्म हो गया, चल हुण कहंदी मैं अपने फिर दोबारा उसे खाड़े च जावां। हालेलुया। लेकिन उत्थे दो होर सीगियां भैणां, आरपा ते रूथ। आरपा ते रूथ सीगियां। उन्हें कहा भी मेरे को हुण इन्नी क्षमता, मैं बुढ़ी हो गई हाँ,
मैं पुत्र नूं कोई जन्म नहीं दे सकदी। तुसीं जवान हो, तुसीं अपने अपने विआह करा के अपने मुड़ जाओ, अपने वापसी ते आनंद नाल रहो, जाओ तुसीं अपने अपने घरां नूं जा सकदियां। आरपा कहंदी माई ने गल चंगी कीती, आरपा क्योंकि उहदे मतलब की गल सीगी, वो वधिया लगी उहनूं जानी जानी आ उत्थे जाके मैं विआह करा लूंगी। होर औरतां दे ही हाल हुंदे आ, एक छड्डिया दूजा कर लिया। ये आर पार गियां आ, हालेलुया। ये आर पार गियां औरतां अज भी है धरती ते, लेकिन रूथ वर्गी होर आ, रूथ क्वालिटी आ, हालेलुया। चलेगी वो क्यों? क्यों कहनी मैं नहीं जाना। नौमी ने कहा मम्मी मैं, उन्हें कहा जिथे तू भी जा, तेन मैं दस चुकी हाँ। गुस्से भी बेटी तू जा, मैं की मैंने बुढ़ी हो गई हाँ। वो कहती नहीं, तेरा खुदा मेरा, जिथे तू दफन होगी मैं भी होंगी, जिथे होंगी तेरा खुदा मेरा खुदा। हुण मैं तेरे घर आ गई हाँ, तू जो कहेंगी मैं उही करूंगी। कहती आ हुई ना गल, कहती चल फिर चलीए। फिर वो बाप, लेकिन उत्थे नबी ने कहा कटनी का समा सी, कटनी का समा सी, आखिरी समा, कटनी का समा, वाढी का समा, हालेलुया। लेकिन जो चलेगी की होया उत्थे, जो उन्हें देखिया, उन्हें कहा माई मैं तेरे वास्ते, ताकि असी उन्हें कमरे कुमरे अपना जिथे रहिंदी सी पुराना स्थान साफ सफाइया किया। उन्हें कहा मैं हुण इंतजाम करना आ। वो सीधी जा बड़ी अनजान पुणे ना बोझ दे खेत च, हालेलुया। वो बुआई दे खेत च जा बड़ी, हालेलुया। जरा बुआई दे खेत दे विच जरा उत्थे उपर प्रधान सीगा, उत्थे बुआज आ जांदा आ। बुआज ने आके उन्हें पूछया, जरा उत्थे दा लंबड़दार सीगा, भी कहंदा भी ये छोकरी कौन है। बुआज आया घोड़े तो उतरिया, उन्हें उन्होंने लंबड़दार नूं बुलाया, कहंदा सुन, कहंदा ये छोकरी कौन है। उन्हें दस्सिया जी इदां तुहाडे इदां रूथ दे अपने नौमी दे विचों आ, नौमी दे घराणे चों आया, इदां इदां करके सब कुछ स्टोरी दसी। उन्हें उन्होंने बुलाया, उन्हें प्यार किया। उन्हें कहना कहना सुन ला गल, अज तो बाद कुड़िए ध्यान नाल, तू कदी किसी खाड़े च नहीं जाना। हुण तू अज तो बाद किसी दूसरे खेत च नहीं जाना, हमेशा बुआई दे खेत चो ही खाना, बुआई दे खेत च घुलना आ। वो अपने नौकरां नूं कहा इस कुड़ी वास्ते छिट्टियां नूं सुट्टदा ही जाना, इस कुड़ी दे वास्ते छिट्टियां नूं सुट्टदे ही जाना आ। समय दे दूत की करते आए आ, छिट्टियां नूं छड्डदे गए आ, ताकि उस समय दे उत्ते दुल्हन जड़ी आ वो छिट्टियां नूं चुकदी रवे, हालेलुया। आखिरी समय तक चुकदी रवे। अज भी जिहड़ी रूथ है, प्रभु का नाम धन्यवाद। उन्हें क्या खूब बाहर नहीं जाना, आज तो खाना, तू किसी ने बाहर खेत नहीं जाना, रूथ किते नहीं जाना। आज तो बाद तू मेरे खेत चो खाना। मैं अपने नौकरां नूं जान करवाती, सारे काम कर दिते, प्रभु का धन्यवाद होवे, हालेलुया। अगे जिहड़े लोग मुक्ति वाले लोग हैं, उन्होंने सिस्टम सारा कुछ दुनिया तो लैदा है, हालेलुया। उन्होंने इंतजाम प्रभु ने किए होंगे आ, वो सब कुछ उन्हें बना के रखा होंगे। इस तरह रूथ का भी उत्थे जरा ओदे खेत दिता गया, उत्थे वो चुकती रही जिन्ना चिर तक रही उत्थे, हालेलुया। कोई समा आया बीत्या, बीतों तो बाद उहदा ब्याह जिहड़ा बुआई ना होया, उहदे प्रभु का धन्यवाद करते समय के नाल उहनूं शरीरक बरकत ना आत्मिक बरकत भी मिली, खुदा का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हुण लोग समझदे खाड़ा, खाड़ा की है? खाड़े का मतलब होंदा जिथे घुलते आ, जिथे परमेश्वर के लोग
संत लोग देखो जिद्दां यकूब घुलिया खाड़े च, हालेलुया। कई लोगों को खाड़े की नहीं समझ अज तक आती। ये दो हैं, एक तो शरीरक है, एक आत्मिक है। जिथे संत लोग घुलते हैं, जिन्होंने दुख सहा अपने जीवन च, जिन्होंने परमेश्वर मगर चले। कई लोगों का सवाल सी उन्होंने मैं दसना चाहया अज भी इसे करके क्या भी वह पहला ही दाह के भज जाते हैं। जो पहलवानों के कोई पाँदा ना नवा नवा, वो जो पहले ही दूजे को एक मारते पटका, कहीं बाहर निकल जाओ कहना छड्ड यार मैं उत्थे नहीं जाया करना घुलना, वो तो पटके ही बड़े मारते। वो तो सानू दिखाते बहुत कुछ है, पता नहीं कितों कितों प्रकाश दी गल्लां कढ लेंदे हो। साडे नाल असीं गल ही नहीं उन्हां नाल कर सकते। कहते एक गल छड्डदे दूजी फड़ लेंदे, दूजी छड्डदे तीजी फड़ लेंदे। कहते भरावा उन्हां को तां साडा मत्था ही खराब कर दिंदे। उन्हां को गल्लां आउंदियां, वो गल्लां करन वाले असीं थोड़ी आ, गल्लां करन वाला तो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा आ। वो कहंदा जदों आउंदा ते सहायक आउंदा मेरियां कईयां होईयां गल्लां ही लैके सिखाउंदा आ। हालेलुया। 70 की समझ नहीं आई, 12 की समझ आ गई। 70 वो घोड़े घुल नहीं सके, लेकिन 12 घुले, 12 घुले, 70 नहीं घुल सके। लेकिन एक उन्हां च फिर भी रह गया सीगा। प्रभु का धन्नवाद होवे। अज भी इदां ही आ, कई रह जाए, कई परमेश्वर घुलते घुलते खुदा तक पहुँच जाएंगे, दुख सहंदे सहंदे। हालेलुया। और नबी ने भी गल कहा, कहता जो कोई भी परमेश्वर को आउंदा आ, वो फुल्लां दी सेज नहीं है, ये सेब कोई फुल्लां दी सेज नहीं है, दुखा की कुख है, दुखों के विचों निकलता बंदा। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। सुन रहे हैं वो सब हमेशा ये पौलुस के खाड़े च घुलन, पौलुस के खाड़े नूं हमेशा याद रखना। और यकूब जो घुलिया उन्हें बरकत लई, केड़ी बरकत लई असीं देखिया, अज जीवन बदलिया। जो कला रह गया सी, अज खुदा ने सानू अज साडे उत्ते चीज़ां नूं खोलिया। प्रभु का धन्नवाद करदा, होली स्पिरिट का पवित्र आत्मा का धन्नवाद करते हैं और ये भलाइयां लई शुक्रगुजार करते हैं। आओ सारे लिए मैं प्रार्थना करदा, जो भाई बहन अपने इस चैनल तो देख रहे हैं, इस प्रचार नूं सुन रहे हैं, सब भाई बहन अखां बंद करनगे, अपने अपने घरां दे विच बैठे हैं, उन्हां सब दे लई दुआ करदा। साडे मेहरबान पिता, जमीन ते आसमान दे मालक, तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरिया भलाई लई धन्नवाद करदा। तू कृपा कीती सब दे उत्ते, जो तेरा कलाम तू बोलिया प्रभु तेरे लोगों तक पहुँचिया। तू अपने बच्चों को आनंद दिता, आनंद किया, आनंद दिता है। तेरे बच्चे अज निहाल होए हैं और खुदावन तेरी बाणी नूं इस माध्यम के द्वारा, लाइव के द्वारा सुनिया है। सुनने वाले प्रभु जो घर बह के सुन रहे हैं और दूर दरेडिया तो सुन रहे हैं, बाहरले मुल्कों तो भी सुन रहे हैं, उन्होंने सब नूं बरकत देनी। इस मारी तो हर एक नूं बचा के रखना प्रभु, अपने अनुग्रह थले रखना। जो बाहर जान अंदर रहन, सब थां ते खुदावन तेरा दूत अपने हत्थां च रखे सब नूं, और सब की रक्षा करे, सब दे संग रवे प्रभु। तू सब नूं बहुत बरकत दे, तेरी वडाई होवे, सब जरूरतों पूरा करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन।